and he worked as a faculty in a coaching center for some years. Then he dedicated his life for the mission of Srila Prabhupada, and Prabhuji is staying in Mayapur and doing so many services. And last time Prabhu gave one wonderful class on what we do and why we do, and that was liked by so many boys. And we request Prabhuji this time once again to give the same class. I hope you like the class. So it is very important to hear the class very attentively, because tomorrow we are going to attend the Mangal Aarti, and so many aspects which Prabhu is going to explain now. It will be very helpful to understand what is going on tomorrow in the Mangal Aarti. So we let's welcome Prabhuji by the loudly chanting three times. Haribol! 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 We'll have Kirtan? Or we'll tell them. Jayo Radha Madhava Kunj Bihari Jayo Radha Madhava Kunj Bihari Jana Vallabha Girivardhari Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्ण नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शुभांशुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So last time there was a group of 40-35. Second. So this time we have a small crowd. So let's see how it goes. So we have, आप सब तो हिंदी समझते हैं ना सभी? বাঙালি আপনি বাঙালি? ओके তাহলে বাংলা সবাই বুঝেন? Okay. And English, everyone understands English. Okay. कम बुझिए आपने बोला अच्छा समझता है, कम बुझिए मतलब कम समझता है। अच्छा okay. So we have few topics which Prabhu has given us to talk upon, like why we do what we do, and he has listed some of the topics. So it is good, like we can go in the flow. Otherwise, last time what happened was that we were short of time and we were not able to finish all the topics because it was more in flow whatever was coming out. But now we have like the topics listed. So first of all, like you all have visited for the first time. You are coming for the first time to No, I have come from for second time. Okay, That good. time I was there. Oh, last class you have attended already. Yes, on the 26th. No, you saw me earlier. Yes, I saw you. The Oh, 26th you December. have attended the class. Yes, I have. Yeah, last time. Then he that's was there. fine. Then even if you don't understand, it doesn't matter. You forgot it. Then you can learn Hindi, huh? You can recall and from Hindi you can take it. It will be much better. आप नहीं बांग्ला ना? हिंदी। हाँ तब ठीक है, तो फिर हिंदी ज़्यादा अच्छी है, आपको हिंदी भी समझ में आने लग जाएगी ऐसे, तो अच्छा है, प्रैक्टिस करो। तो पिछली बार हमने जो डिस्कशन किया था वो मेनली था कि हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं। अब सीधी सी बात है, आप लोग पहली बार आए हैं मायापुर में, आके आपको अचानक से झोंक दिया गया है, इतना कुछ आप देख रहे हैं, आंखें चौंधिया जाती हैं कहाँ से, और हम सोचते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, थोड़ा साधु सात्विक ऐसा भी रहे, पर यहाँ पे वी सी स्टाइलिश डिवोटीज आल्सो, वी सी टैटू डिवोटीज आल्सो, वी इवन सी फॉरेनर डिवोटीज आल्सो which we don't see in the normal life also। मतलब माया यहाँ पे ज्यादा है, और ठीक है, और उसके साथ ही साथ इतनी सारी पद्धतियां हैं जो हम देखते हैं जो हमें अजीब लगती हैं, कितने सारे रिचुअल्स हैं एक साथ में, ये सब एक खिचड़ी एक साथ में जब आती है तो माइंड थोड़ा ब्लॉक हो जाता है कि क्या है। तो तब ये एक टॉपिक बनाया गया, इसीलिए क्या करते हैं और क्यों करते हैं ये हमको जानना जरूरी हो जाता है तब, क्योंकि यदि नहीं जाने तो अचानक से यदि ये सब चीजें सामने आए तो दिमाग घूम जाता है, तब लगता है कि ओहो, फिर कई डाइजेस्ट कर पाते हैं, कहीं नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हाँ फंस जाते हैं। कुछ फंस जाते हैं, कुछ है जो छोड़ के भाग जाते हैं, जो दिमाग उड़ जाता है। हाँ सबको ऐसा ही लगता है, तो ये एक जनरल कॉमन फीलिंग। तो इसीलिए हमें ये जानना, असल में हम कहीं पे भी, घर पे भी हम देखते हैं, मंदिर में जाते हैं, ऐसा करते हैं, पर क्या करते हैं ना, तो आज वैसे जानने वाले हैं ना वैसे मानने वाले हैं। आजकल तो ये जमाना है कि मंदिर के बाहर से गुजरते हैं, तो पहले था कि हाँ जाके प्रणाम करते थे, अभी तो सब यदि मंदिर गए देखा होगा सब एकदम लेट जाते हैं, सो जाते हैं वहां पे भगवान के सामने। ऐसा हम में से कितने लोग हैं जो बाहर कभी मंदिर में गए तो सोए हों? एक, हाँ। अच्छा, अयोध्या में मिस्टर नरेंद्र मोदी वो गए थे अभी, जब वो था तो वो पिक जो थी वो 2020 की कुछ वायरल पिक्स में से एक पिक थी। उन्होंने प्रणाम किया था पूरा सो के, दंडवत प्रणाम किया था उन्होंने, ठीक है। तो ये एक जनरल चीज है कि भगवान के सामने ऐसे प्रणाम करना चाहिए, लेकिन हम उससे ऊपर उठते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो फिर सो के नहीं करते हैं तो झुक के, मतलब आधा प्रणाम जैसा होता है अष्टांग प्रणाम और वो पंचांग प्रणाम,
अच्छा आ रहे हैं उस पे। उसके बाद में आता है सिर्फ ऐसे करते हैं, उसके बाद में आता है सिर्फ ऐसे करते हैं। अब जो है, जो मैंने देखा था जब आई वाज वर्किंग, लाइक वन ऑफ माय कलीग यूज्ड टू गो आउटसाइड द टेंपल, बाइक से जा रहे हैं, खाली पीप पीप। ये हमें घंटा बजा दिया भगवान का। ठीक है, भगवान को समझ आना चाहिए कि हमें हाजिरी देके ये क्या है। ठीक है, ये है आज का। इससे भी ऊपर अब तो चला गया होगा, ये तो मैं फिर 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो जब हम इस लेवल पे पहुंच गए तो अब कौन हमको बताएगा, सिखाएगा, दिखाएगा, समझाएगा? कोई सवाल ही नहीं उठता है। इवन हमारे पेरेंट्स के लाइन में भी शायद वो भी भूल गए हो, क्योंकि इतने साल से प्रैक्टिस नहीं किया कि क्या करते हैं, क्यों करते हैं। तो तब जब आप ऐसी जगह पे आते हैं और देखते हैं कि सब इतनी ज़्यादा तरीके से इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तब हमें ये ज़रूर से इच्छा जाग जाती है कि क्या है और क्यों है। तो हम उसी सीरीज़ के अंदर में आएँगे कि क्या है, क्यों है। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो हम बेसिक चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आपको सवाल होंगे, तो उनको आप दबाएँ ना, अवश्य आप पूछें अपने सीनियर से। पर जो बेसिक चीज़ें हैं, जो जनरल हैं, जो आनी चाहिए दिमाग में, क्या है और क्यों है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने देखी होगी वो है वैष्णव तिलक। सबके माथे पे एक तिलक रहता है। ये तिलक प्रभु जी ने लिस्ट किया, इसलिए मैं उसी सीक्वेंस में बोल रहा हूँ। ठीक है? तो तिलक क्या है और क्यों है ये तिलक? तिलक बेसिकली किस लिए करते हैं तिलक? तिलक असल में ये जो 2 लाइनें हैं, ऐसे 2 लाइनें रहती हैं और नीचे में एक ऐसी शेप का कुछ रहता है। तो ये जो ऐसी शेप है वो तो समझ में आ गई, एक पत्ता है, तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता हम कहाँ चढ़ाते हैं? भगवान को कहाँ चढ़ाते हैं? चरणों में। तो ये हैं भगवान के चरण। अब ये चरण कैसे हैं? तो भगवान के 2 चरण, मान लीजिए 2 पैर यदि ये हैं, तो भगवान के ये 2 पैर आपने ऐसे बनाए यहाँ पे। तो ये आपने क्या बनाया? सिर्फ एजेस बनाए। ठीक है, भगवान के सिर्फ एजेस आपने बना लिए पैरों के यहाँ पे, और उन चरणों पे आपने क्या चढ़ा रखी है? तुलसी। भगवान के चरणों को आपने अपने मस्तक पे धारण किया है। किसने धारण किया था भगवान के चरणों को? अगेन भगवान राम के नाम भरत। भरत भरत ने कब किया था? किस लिए किया था? जब उनको गद्दी में 14 साल की जब उनको कहा था कि भैया आप ही को रूल करना है किंगडम में, नहीं आने वाला हूँ वापस। तो उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, आपकी ये चरण पादुकाएं ये रूल करेंगी और मैं साइड में बैठूंगा। और वो उनको मस्तक पे ढोके ले जा रहे थे। ऐसे बलि महाराज हैं, उन्होंने भगवान के चरणों को धारण किया। बलि महाराज के सामने जब वामन देव बड़े हो गए थे, 3 पग मांगे थे, तो 2 ही पग दे पाए थे वो। एक ऊपर वाले सारे लोग, एक नीचे वाले सारे लोग, अब तीसरा कहाँ रखूं? तो उन्होंने कहा, तो भगवान के चरणों को यदि कोई सिर पे धारण कर ले तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। ये मतलब पूर्ण शरणागत हो गया वो भगवान। तो हम अपने शरीर को, भक्त जो होते हैं वो अपने शरीर को इस तरह से सजाते हैं कि भगवान के चरण, हर केवल यहाँ नहीं बहुत सी जगह बनाते हैं, लेकिन मुख्य है कि अपने माथे पे, मस्तक पे, जहां हमारा ईगो नाचता है भयानक तरीके से, वहां हम क्या करते हैं? भगवान के चरण को रखते हैं, ताकि आवर माइंड बिकम्स सबऑर्डिनेट टू लॉर्ड। भगवान का दास बनने की कोशिश करें। भगवान का दास बनेगा तो हमारा दास बनेगा। हमारा तो दास नहीं है। आवर माइंड इज नॉट आवर सर्वेंट। ये हमें मान के चलना चाहिए। आवर माइंड इज नॉट आवर सर्वेंट, आवर वी आर सर्वेंट ऑफ आवर माइंड। सिंपल है। आपको जो अच्छा लगता है वो देखते हैं आप। आपको जो देखना चाहिए वो आप कई बार नहीं देखते हैं, पर जो अच्छा लगता है वो अवश्य देख लेते हैं, चाहे वो नहीं भी देखना चाहिए। सो दिस प्रूव्स दैट वी आर सर्वेंट ऑफ आवर माइंड। इसीलिए हम मस्तक पे धारण करते हैं भगवान के चरणों को। तो तिलक क्या है बेसिकली? ये है गोपियों की चरण धूलि। अब गोपियां कौन है? वो है भगवान की सबसे टॉप लेवल डिवोटीज। लक्ष्मी नहीं, गोपियां। लक्ष्मी भी, अब वो आप समझेंगे कि डिवोटीज में कितने लेवल्स होते हैं, वो एक गूढ़ टॉपिक है, उसमें नहीं जाएंगे हम। तो आप मान लीजिए भगवान के एसोसिएट्स जो भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके चरणों की धूलि है जो हम ले रहे हैं। उन्होंने भगवान के चरणों को मन में धारण कर रखा है, पूर्ण शरणागत हैं वो भगवान के और शुद्ध भक्त हैं। इसीलिए उनके चरणों की धूलि है यदि हम लेते हैं, शुद्ध भक्तों के चरणों की धूलि लेते हैं, तो हमारा मन शांत होता है। हम सबऑर्डिनेट बनने की कोशिश, दास बनने का प्रयास कर पाते हैं, और उससे हम भगवान के चरणों को उकेरते हैं हमारे शरीर में। यह है तिलक। ठीक है, तो ये तिलक के हमारे जो रंग होते हैं वो नॉर्मली क्या होता है? येलोइश टाइप। ओके, और जो शेप है वो भगवान के चरण और तुलसी है। ओके, सेकंड आती है कि हम देखेंगे आरती। मंदिर में हम देखते हैं आरती करते हैं। ये आपने अभी संध्या आरती में डांस किया, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया पुजारी क्या कर रहा था?
मंगल आरती के टाइम पे सब जगह अंधेरा रहेगा, तो आप क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता, लेकिन सबको ये दिखेगा कि पुजारी क्या कर रहा है। तो हमें ये नोटिस करना है कि पुजारी क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसका भी एक प्रोसेस है, व्हाई वी डू आरती। तो आरती असल में है क्योंकि ये सारा संसार किससे बना हुआ है? 5 तत्वों से। क्या क्या है वो? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। 5 चीजें हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ईथर को आप ऐसे सिग्निफिकेंटली समझे तो स्पेस। दिस एंटायर क्रिएशन यूनिवर्स इज फिल्ड विद व्हाट? स्पेस, नॉट विंड। हवा इसको नहीं भर के रखी हुई है, स्पेस ने भरा हुआ है इसको। तो ये एक एलिमेंट है, एज पर भागवतम ये एक एलिमेंट है। ओके, तो ऐसे 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों से ये सब बना हुआ है। प्लस हमारा देह 5 तत्वों से बना है, और किससे बना है? ये 5 हैं जो ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, सटल 3 हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ठीक है, इन 3 चीजों से बना है। तो ये जो 8 चीजों से बना है, ये 8 चीजें ही हम भगवान को आरती में चढ़ाते हैं, उनका शुद्धिकरण करने के लिए। ये प्रोसेस है डेली। भगवान को आप ये चीजें चढ़ा दें ताकि वो शुद्ध हो जाएं, और फिर आप उनको प्रसाद के रूप में व्यवहार करते रहें पूरा दिन। तो आप कैसे चढ़ाते हैं चीजों को? तो पुजारी जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आरती की विधि जो है उसमें सबसे पहले पुजारी क्या करता है? पट खोलने से पहले शंख बजाता है। तो शंख के माध्यम से एक तो वो सबको आगाह कर रहा है कि इस जगत के निर्माता, पालन करता, संहार करता जो भी हैं, सब कुछ जो है, सबसे बड़े व्यक्ति हैं, वो पधार रहे हैं। ये सिग्निफिकेंस हो रहा है उस शंख बजाने का। तो इससे हमें क्या करना चाहिए? वी बिकम इमीडिएटली अटेंटिव एंड आवर माइंड बिकम्स रिसेप्टिव टू रिसीव हिम। व्हेन कोई भी बड़ा आदमी आता है तो उससे पहले उसके बहुत सारे लोग आते हैं और सब एकदम एकदम रेडी हो जाते हैं कि हाँ वो आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ उल्टा कोई खड़ा हुआ है, यहाँ से पीछे से उसके जा रहा है कोई बड़ा आदमी, ऐसा कभी होता है? नहीं। सिमिलरली जब भगवान आते हैं तो सबको अटेंटिव करने का माध्यम है वो शंखनाद। दूसरा, उसके माध्यम से वो ईथर को भगवान को अर्पण कर रहा है बाई ब्लोइंग द कॉन्च शेल। ओके, फिर वो पट खोलता है। हाँ? क्या बोल सकते हैं? वायु स्नान। हाँ, वायु भी बोल सकते हैं, लेकिन मेनली इट इज ईथर, इज कंसिडर्ड मेनली ईथर। और साइंटिफिक रीजंस बहुत हैं उसके, उसको करने से जितने भी तरह के इनऑस्पिशियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे डाई अवे। वो अभी लॉकडाउन के टाइम में ऐसे आवाज कर रहा पूरे हाँ, तो जगह। आवाज प्लस शंख भी। हाँ। तो शंखनाद इज वेरी साइंटिफिक एंड इवन इट इज अ टाइप ऑफ आवर एक्सरसाइज। तो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं वो क्या है। वो बहुत हर एक चीज़ के आपको मिलेंगे कि बहुत सारे सिग्निफिकेंट साइंटिफिक रीजंस हैं। और जो वैदिक पद्धति है वो मूर्ख पद्धति नहीं है, वो कोई माइथोलॉजी नहीं है। माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है? मिथ। मिथ। मिथ मतलब जो लोगों ने ऐसी मिथ्या, काल्पनिक ऐसे ही माना हुआ है और चल रहा है, वो ये वो नहीं है। हिंदू माइथोलॉजी इज अ रॉन्ग टर्म। ये इट इज नॉट माइथोलॉजी। ये हर एक चीज साइंस पे, कसौटी पे एकदम खरी उतरती है। एवरीथिंग इज अ फैक्ट। ओके, तो इसी तरह फिर हम आते हैं आगे। तो आरती के अंदर में आगे क्या करते हैं वो, फिर वो एक थाली सजी होती है, उसके अंदर सबसे पहले वो इंसेंस स्टिक्स यानी धूप, ओके, अगरबत्ती, वो भगवान को चढ़ाते हैं, दिखाते हैं। तो उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं भगवान को? इंसेंस के माध्यम से एक तो है सुगंध, फायर तो दीप में आएगा, एक तो है सुगंध, फ्रेग्रेंस, और उसके अलावा वही बोल सकते हैं वो एक अर्थ का भी एलिमेंट है, क्योंकि इंसेंस स्टिक्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अर्थ। तो वो एक अर्थ का भी एलिमेंट आता है। सो दैट वी ऑफर एंड देन वी कीप। अब ऑफरिंग का भी एक तरीका है कि हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ऑफर करते हैं। सबसे पहले जैसे वाया प्रभुपाद वी गो एंड देन वी ऑफर टू द टॉप मोस्ट पर्सन दैट इज कृष्णा, देन राधा रानी, देन द सखीज, और उसके बाद में है तुलसी महारानी, उसके बाद में है द परंपरा, ऑल द आचार्यस, एंड देन टू ऑल अदर डिवोटीज, लाइक दिस। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम जो है वो है दीप। दीप मतलब तो दीप जेटा के बोले फायर, उसके माध्यम से हम क्या दे रहे हैं? फायर एंड घी। और वो जो ऑफर करने के बाद में सब आरती भी लेते हैं उससे, दैट अगेन रिमूव्स द इनऑस्पिशियस
नेस ओवर अस। जब हम नजर उतारते हैं तो नॉर्मली हम आग के माध्यम, अग्नि के माध्यम से उतारते हैं। तो यदि हम उसको लेते हैं तो वो एक इनऑस्पिशियसनेस भी हटाती है, और दूसरा वो एक प्रसाद है, भगवान का अग्नि प्रसाद के रूप में आई है उस समय में। तो ये हो गया धूप, दीप, और उसके बाद में तीसरे नंबर पे हम देते हैं वस्त्र, सॉरी तीसरे नंबर पे देते हैं जल। तो जल के अंदर में हम वाटर दे रहे हैं, सीधा सीधा शंख के अंदर डाल करके दे रहे हैं सुगंधित जल। सुगंध भी ऑफर कर रहे हैं, जल भी ऑफर कर रहे हैं, और ये भगवान के मस्तक पे दिया जाता है और बाद में भक्तों के भी मस्तक पे छिड़का जाता है एज अ प्रसाद। चौथे नंबर पे आता है वस्त्र। वस्त्र मीन्स अगेन इट कम्स एज अर्थ, अर्थली एलिमेंट, वो भगवान को ऑफर करते हैं। पांचवें नंबर पे आते हैं पुष्प, उससे सुगंध भी दे रहे हैं, पुष्प भी दे रहे हैं, यानी कि वृक्षों की तरफ से भी कुछ हो गया। ओके, और उसके बाद में आता है चांवर। चांवर से क्या देते हैं हम भगवान को? हवा करते हैं, विंड कम्स देयर। ठीक है, चांवर और मयूर पंख इसके बाद में आता है, तो दोनों से ही हम हवा कर रहे हैं भगवान को, तो विंड दे रहे हैं। और दूसरा चांवर किसका बना होता है? गाय का पूंछ। कौन सी गाय का पूंछ? नेपाली गाय उसको बोलते हैं। याक की पूंछ होती है वो, जिसके अंदर उसकी हड्डी भी होती है, थोड़ी सी होनी चाहिए, ये मस्ट है। तो वो होता है चांवर, तो वो शुद्ध है, भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो काटने से उसको कुछ नुकसान होता है, इट अगेन ग्रोज बैक, या दैट वी यूज। सो सम थिंग्स आर देयर व्हिच वी कंसीडर एज ऑस्पिशियस। और लास्ट वाला है मयूरपंख। मयूरपंख से हम हवा देते हैं भगवान को। और उसके बाद में फिर से वो शंख बजाता है, एंड एट द एंड व्हाट वी डू, आरती तब तक खत्म हो जाती है। और आरती खत्म होने के बाद में वो क्या करता है? प्रणाम करता है भगवान को। प्रणाम करने के माध्यम से वो क्या कर रहा है? तो हमने अपने 5 एलिमेंट्स जो थे, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। अर्थ भी दिया, फायर भी दी, वाटर भी दिया, एयर भी दी, ईथर भी दिया। पांचों एलिमेंट्स का शुद्धिकरण कर लिया। अब बाकी बच गए थे वो 3, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। ये हमने कहाँ दिए? तो इंटेलिजेंस ये है कि वो जब वो सारी चीजें ऑफर कर रहे हैं भगवान को, तो उसके अंदर में उनको बुद्धि चाहिए कि कैसे कैसे ऑफर करना, और जैसा मैंने सीक्वेंस बताया उसी सीक्वेंस में ऑफर कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरे सीक्वेंस में वो ऑफर नहीं करेंगे। तो ये जो सीक्वेंस है ये भी सिग्निफिकेंट है। तो ये है बुद्धि। इसमें क्या काम में आ रही है? हमारी बुद्धि, कि हाँ हमने ऐसा सुना था कि इस सीक्वेंस में करना है और फिर हम वैसे ही करने जा रहे हैं। तो ये मेरे को कहाँ से याद आएगा? मेरी बुद्धि से, इंटेलिजेंस से। और कैसे घुमाना है? तो वो 7 बार भगवान को दिखाना होता है, इसमें भी इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे मैं मेरा इंटेलिजेंस लगा रहा हूँ। इंटेलिजेंस कभी भी डायरेक्ट काम नहीं करता है। इंटेलिजेंस जस्ट गिव्स डायरेक्शन टू whom, और गिव्स गाइडेंस, मतलब एक एडवाइजरी कमिटी है इंटेलिजेंस। किसके लिए? माइंड के लिए। एक्शन प्लान कौन करता है? माइंड। तो माइंड को एडवाइस करने का काम है इंटेलिजेंस का। तो इंटेलिजेंस सारा इंटेलिजेंस लेके बैठा हुआ है, उसके पास में माइंड आता है, हाँ इसको क्या करना चाहिए, माइंड को वो बताता है कि हाँ इसको ऐसे ऐसे घुमाना है। अब माइंड की इच्छा है, वो 7 बार घुमा भी सकता है, और नहीं जल्दी जल्दी कर दो, 2 बार घुमा दो, हटा दो, ये माइंड के ऊपर है। ठीक है, तो अब माइंड कैसे लगा कि नहीं 7 बार बोला इंटेलिजेंस में, 7 बार ही दिखा रहा हूँ, ये है माइंड। यहाँ पे मेरा माइंड काम में लग गया। ठीक है, अब बच गया क्या? फॉल्स ईगो। तो पूरा माइंड मैंने काम में लगा लिया उस प्रोसेस को करने में, इंटेलिजेंस की एडवाइस लेते हुए, ये खत्म। अब फॉल्स ईगो वो कैसे हम अर्पण करते हैं? वो सबसे लास्ट में अर्पण करते हैं, जब हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम भी कैसा करते हैं? साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, यानी पूरे सो जाते हैं। तो इसका मतलब है मैं कुछ भी नहीं हूं। एक छड़ी के माफिक किसी के सामने ऐसे गिर जाना, एक होता है कि ऐसे प्रणाम करना, मतलब आप कुछ हैं। ठीक है, जब आप ऐसे प्रणाम करते हैं तो आप कुछ हैं। एक ऐसे प्रणाम करते हैं मतलब आप कुछ भी नहीं है, आप पूरा जमीन के बराबर ही हो गए हैं, मतलब आप जीरो हो गए हैं पूरी तरह से। ये होता है साष्टांग प्रणाम का मतलब। यानी मेरा सारा ईगो जो था वो मैंने त्याग दिया है वहीं पे। इसीलिए मंदिर में जाते ही, चाहे राजा हो या रंक, ऐसे प्रणाम करना चाहिए, यानी मैं कुछ नहीं हूं आपके सामने। तो यहाँ पे व्यक्ति अपना मिथ्या अहंकार या उपाधि जो भी उसको ये संसार देता है, उसको वो त्याग देता है। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने दिखाया था, although he was the first person, sorry, he is not the first person, he was the second person of the country, still उन्होंने ऐसे प्रणाम किया था। ठीक है, तो ये यही हम करते हैं। हम बार बार मंदिर में जाते हैं, जितनी बार जाते हैं उतनी बार ऐसे लेट जाते हैं। उसका कारण क्या है? बार बार अहंकार बहुत ज्यादा है। आप ये मत सोचिए एक बार करने से हाँ मेरा अहंकार चला गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस है कि एक बार रियलाइज हो एट द एंड कि हाँ
मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, कभी ना कभी तो क्लिक करेगा मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं। और ये प्रैक्टिस से करत करत अभ्यास के जड़मति, जड़मति हैं हम, जड़मति। ये कहावत सुनी है आपने? सुनी है? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। ये शायद कालिदास के साथ था क्या? मतलब बहुत लोगों से रिलेट किया हुआ है इसको। तो ऐसे कहा गया है कि एक मूर्ख व्यक्ति था, वो कुछ नहीं कर पाता था, बार बार प्रयास करता था, विफल हो जाता था, और इसीलिए उसका दिमाग वो हताश हो गया था, और वो जा रहा था एक बार कि अब मैं मरूंगा, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जा रहा था तो रास्ते में एक कुआं था, कुएं के पास में महिलाएं पानी भर रही थी रस्सी से खींच के, और फिर वो देखता है वहां पे, उसने पानी पिया, और फिर वहां पे देखा उसने कि कुएं की जो मुंडेर होती है, जो दीवार होती है कुएं की, वहां पे एक निशान बना हुआ है। तो उसने पूछा ये निशान कैसे बना है? तब उन्होंने कहा कि ये रस्सी से हम खींचते हैं, तो खींचते खींचते निशान बन गया। तब उसको ये दिमाग में क्लिक किया कि रस्सी पत्थर को काट रही है, ऐसा संभव है क्या? लेकिन रस्सी पत्थर को काट रही है, कैसे काट रही है? बाय प्रैक्टिस। क्या मतलब? बार 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 बार, तब वो काट सकती है। तो उसको लगता है कि हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मति, जो जड़मति है, जो जिसको कुछ नहीं समझ में आता, वो भी सुजान, वो भी जागृत हो सकती है। किस माध्यम से? अभ्यास के माध्यम से। तो हम भी यही करते हैं कि बार बार हम अभ्यास करते हैं ये सब चीजों का करने का। कोई ये कह सकता है कि आप नाटक कर रहे हैं, आप कह सकते हैं भाई नाटक कर रहे हैं, क्योंकि कई बार आप कॉन्शियस नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब चैंटिंग दी गई थी शुरुआत में, तो क्या बोला गया था? किस लिए, क्यों करते थे आप चैंटिंग? क्यों शुरू किया था भाई चैंटिंग करना? माइंड कंसंट्रेट, उसके लिए क्या बोला था? फोकस करिए एक एक वर्ड पे। हाँ, तो हर समय आप फोकस करते रहते हैं एक एक वर्ड पे। अब चैंटिंग के समय आपको फील होता है ऐसा, या आपको ऐसा लगता है कि बाकी लोग जो कर रहे होंगे, हाँ ऐसा एकदम फोकस कर रहे होंगे, ऐसा लगता है? नहीं। लेकिन करत करत अभ्यास की, आप अभ्यास ही नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। ऐसे ही नहीं हो रहे तो कभी नहीं होगा फिर तो अभ्यास करना है उसका, उससे वो होगा डेफिनेटली। उसका एग्जाम्पल है ये, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़ने से। और ऐसे एग्जाम्पल्स आपको, कई शुद्ध भक्त हैं यहाँ पे, 50 साल से सिर्फ यही हैं और वही सेवा कर रहे हैं, और यहाँ के नहीं है, वो विदेश के हैं। तो वो जब ऐसा कर सकते तो हम कैसे नहीं? वो जब इस लेवल के शुद्ध हो सकते तो हम तो फिर भी भारतीय हैं, हमें तो फिर भी थोड़ी बहुत है इंसानियत, मानवता, और जो भी कहें, हाँ हमारे तो घर का ही है, तो फिर हमें तो ज्यादा होना चाहिए ये। तो यही हमें क्या बोलते हैं, वो देता है हमारे हमारे जैसे जड़ मतियों के लिए। ये एक इंस्पिरेशन है कि हाँ, हम भी ऐसे लेवल पे जा सकते हैं, जब हमारी भी चेतना जो है वो पूर्ण जागृत हो जाए। तो इस माध्यम से हमने देखा कि आरती के माध्यम से हम क्या करते हैं, भगवान को अब सारी चीजें जो भी हैं इस संसार के अंदर, जो हम व्यवहार कर रहे हैं, वो सब भगवान को अर्पण कर देते हैं और उनका शुद्धिकरण कर लेते हैं, ताकि वो सब क्या हो जाए, वो असल में भगवान की देन थी, हमारी देन नहीं थी। तो इसीलिए हमने दे दी और फिर प्रसाद के रूप में हमने ग्रहण कर लिया, यानी कि हम चोर नहीं हुए। ये एक और कॉन्शियसनेस हमें दिलाता है कि वी आर नॉट द कंट्रोलर और प्रोप्राइटर ऑफ द थिंग्स। हम इन चीजों के, ये चीजों के मालिक नहीं है हम, मालिक कोई और है, हमें दी गई है, हम व्यवहार कर रहे हैं उसका होकर के। ये एक कॉन्शियसनेस मिलाता है। फिर और क्या पॉइंट्स थे? तो ये है आरती का पॉइंट, जो आप कल सुबह देखेंगे कि क्यों हम आरती करते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसके लिए हम आरती करते हैं, मतलब भगवान को हम सारी चीजें अर्पण करते हैं। और तिलक आपको बताई दिया क्यों तिलक लगाते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये सब क्या पहना हुआ है। आई एम बीटेक फ्रॉम एनआईटी दुर्गापुर, इंजीनियर हैं, ये सब क्या पहन लिए? तो आप देखेंगे कि आप सबने पहना हुआ है जो है वो जीन्स पहनी हुई है, और जीन्स को पहन के ऐसे बैठ के कितना कंफर्टेबल लगता है। असल में जीन्स की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, यदि आपको पता हो, डेनिम वाज द फर्स्ट कंपनी टू इन्वेंट जीन्स। और हाँ, टेंट, टेंट से भी फॉर लेबर, टेंट बनाया, टेंट बना दिया। हमारे लिए कैसे जीन्स बनी? लेबर्स की, जो कि खदानों में काम करते थे विदेशों के। वहां पे आपको धोने का तो छोड़ो, कुछ भी समय नहीं आपको, तो आपको ऐसे कपड़े चाहिए जो आप पहन के बस लेबरगिरी करते रहें। तो वो उसके लिए ये डेवलप हुई थी।
फिर इसको पॉपुलराइज धीरे धीरे कर दिया गया कि हाँ ये ऐसी है वैसी है, पर असल में ये क्या है, उन्हीं के लिए है। हॉस्टल में भी हमने देखा है, लाइक पीपल वियर इट फॉर अ मंथ, नॉर्मल है, महीने महीने पहन लेते हैं। और एक जोक था इसके लिए फेमस कि संता ने जीन्स पहनी है और संता गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखाया कि मेरे पैर का रंग हो गया है नीला। डॉक्टर ने कहा तो विष बढ़ रहा है, विष बढ़ रहा है, तुम्हारे शरीर में विष बढ़ गया है, यहाँ तक बढ़ गया है, ये तो तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। फिर उसने इतना पैर काट दिया। फिर अगले दिन वो फिर आया कि वापस देखो यहाँ पे भी नीला हो रहा है, तो बोले ये भी काटना पड़ेगा, ये भी काट दिया। फिर अगले दिन वापस आया, फिर वापस वो देख रहा है कि हाँ इतना और नीला हो रहा है, तो बोले अरे और ऊपर जाए जा रहा है ये विष, तो ये भी काटना पड़ेगा। फिर लास्ट में, हाँ फिर लास्ट में उसको पता चला कि अरे भैया तो जीन्स ही कलर तो ये जीन्स जो है इट इज नॉट सो कंफर्टेबल फॉर अस, बट स्टिल वी वियर एज अ फैशन, एज अ स्टाइल। बट व्हाट इज कंफर्टेबल, व्हाट इज बेस्ट कंफर्टेबल। एक बार एक ऐड आया था वेंटिलेशन का, जिसके अंदर में टावल पहन के मुंबई की लोकल ट्रेन के अंदर में किसी को दिखाया गया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद वीआईपी का था या किसका था, मुझे याद नहीं है, बट इट वाज द एड कि आप अपने जो आपको कंफर्टेबल है वो कंफर्ट के साथ आप कितना एडजस्ट करते हैं। तो यस वी एडजस्ट ऑन द नेम ऑफ फैशन। पर ये एक फैशन स्टेटमेंट आपने देखा होगा कैसे जो लोग कैरी करते हैं, कैसे उन्होंने इसको एक फैशन स्टेटमेंट बना रखा है, एंड दे आर टू लाइक पैशनेट टू कैरी दैट। उनको देख के आपको शर्म आ जाए कि आपकी ड्रेस का वो उतना नहीं है जितना उस बंदे पे वो जच रहा है। तो दिस इज इसका रीजन क्या है, ये एक तो पहली चीज तो ये हमारे बॉडी के कंफर्ट लेवल के हिसाब से है, इट डजंट स्ट्रेन्स आवर लेग्स और एनी ऑफ द बॉडी पार्ट। ओके, सेकंड इज स्ट्रेनिंग के अलावा जब आप केवल ये पहनते हैं तो आप नॉर्मल में आप ऐसे बैठेंगे ही नहीं, घर पे आप जीन्स पहन के ऐसे बैठेंगे ही नहीं। तो जब आप ऐसे नहीं बैठेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे, रेगुलरली नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो डार्विन्स थ्योरी हमने पढ़ी है शायद, डार्विन्स थ्योरी पढ़ी है ना, हाँ, तो क्या होगा, हमारे बाद की जो जीनर आएगी वो बैठ ही नहीं पाएगी कभी, और हम इवॉल्व कर जाएंगे। ऐसे हम कर चुके ऑलरेडी, फ्रॉम इंडियन पैन टू वेस्टर्न पैन हम इवॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, और हम फिर इवॉल्व कर जाएंगे कि हम हमारी पीढ़ी जो है आगे वाली पीढ़ी वो तो कर ही नहीं पाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। ऐसा हम देख रहे हैं, ऑलरेडी हो रहा है ऐसा। हाँ, नहीं बैठ सकते। एक बार यहाँ आए थे फॉरेन से बहुत ज्यादा लोग, और उस वजह से पूरी बिल्डिंग के अंदर में वो सारे बाथरूम तोड़ करके वो वेस्टर्न पैन लगवाए गए, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप आ रहा था, बहुत बड़ा ग्रुप आ रहा था, और देवर टू फिल्थी रिच, तो वो घुसते ही नहीं यहाँ पे यदि ऐसा सिस्टम देखते तो उनके लिए स्पेसिफिकली पूरी बिल्डिंग को चेंज करा दिया गया जस्ट फॉर दैट। तो ये एक फैक्ट है कि आप देखिए आज आपके खुद के घर में देखिए कितने लोगों के हैं इंडियन पैन, नील है ऑलमोस्ट, सब आ गए हैं वेस्टर्न के ऊपर में। तो अब फ्यूचर क्या होगा, ऐसा ही होगा। अभी तो और है कि हाँ उस केवल मात्र वो नहीं, आप वैसे नहीं बैठ पाते हैं तो आपका क्लियर भी अच्छे से नहीं होगा, और उस वजह से यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर। तो हाउ कैन यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन अ बाथरूम, सिर्फ मोबाइल। एक मूवी थी क्या तो नाम याद नहीं आ रहा, सैफ अली खान एंड प्रीति जिंटा, हाँ शायद हम तुम, उसमें उसमें एक झगड़े का कारण था। वो दूध दूध बोला था, मेरे को दूध दो। कहाँ पे, बाथरूम के बाथरूम में। अंदर में। मेरे को So उससे people have so much of activities to do in the bathroom. पहले बाथरूम होता था बाहर में छोटा सा सड़ा हुआ सा, लेकिन अभी बाथरूम इज द मोस्ट प्रीशियस प्लेस ऑफ द बिल्डिंग, आपका घर, जिसके अंदर सबसे क्लीन वही रहता है, और उसके अंदर सारी मॉडर्न एमिनिटीज फैसिलिटीज है, इवन साउंड सिस्टम पीपल ने रख दिया। आई हैव सीन कि ऐसे एक टेबल है पुल ओवर, आप ऐसे बैठे, जस्ट पुल ओवर द टेबल, ऐसे टेबल बढ़िए, उसके ऊपर आराम से न्यूज़पेपर फैलाइए, पढ़िए, आपको जो करना है करते रहिए आराम से, यू बी देयर। तो इतना कुछ आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इतना इवोल्यूशन आपका हो चुका है, किस वजह से, इसी एक ड्रेस कोड की वजह से। ड्रेस कोड की वजह से आप बैठ नहीं पा रहे हैं, बैठने की वजह से आप बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम चलते गए कहाँ पहुंच गए हम, देखो बाथरूम के अंदर में सब कुछ करने लग गए। और बहुत जल्दी ऐसा होगा कि फ्यूचर में कि बाकी सब जो स्पेस है घर का वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो बाथरूम में रहेगा। जबकि पहले भगवान का घर वो सब मेन चीजें थी, वो सब तो वो भगवान सिकुड़ गए हैं एक छोटे से कोने में,
ठीक है, एक छोटा सा भगवान घर होता है, लेकिन ये सब चीजें इतनी फैल गई हैं हमारे साथ साथ। तो ये है चीजें जो हम यदि नहीं माने हमारे संस्कृति को तो हो रही हैं, और हमें पता भी नहीं चल रहा है हो रही हैं। हाँ, हो रही हैं, पर कभी क्लिक नहीं कर रही हैं कि इतनी चेंज हो गई, और फ्यूचर में क्या होगी, कि कैसी बदतर होगी वो भी नहीं पता। हाँ, इसमें वो भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। So how can we like stay safe from it? By not adjusting our body, keeping our body fit. Fit body means fit mind. So how can be body fit? If you try to adjust in these clothes. घर पे लोग पहनते ही हैं नॉर्मली लुंगी, तो आप घर पे ये, या घर पे मतलब बेस में रहते हैं, जब जब सब वैसे हैं, देन इट इज इनकरेज्ड कि हाँ आप लोग ऐसी ड्रेस पहन सकें। जैसा हमारे साथ भी होता था कि हम लोग जब कॉलेज जाते थे तो इमीडिएटली हम तिलक मिटाते थे, इमीडिएटली हम ड्रेस चेंज करते थे और 5 मिनट के अंदर हम भाग जाते थे। लेकिन जब हम बेस में रहते थे, देन वी यूज्ड टू ट्राई टू वियर दीस क्लोथ्स, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। अब केवल मात्र क्या कंफर्ट ही है, सब शरीर शरीर शरीर। असल में संस्कृति की देन है ये कपड़े, ये शुद्ध हैं, ये सफेद हैं। सफेद कपड़े एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट करते हैं। और दूसरा तो है कि हमारी सांस्कृतिक देन है कि हाँ हमें धोती कुर्ता पहनना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेडीज फीमेल्स ऑल्सो सेम प्रॉब्लम, सो दे ऑल्सो वियर गोपी ड्रेस जो बोलते हैं, वो अभी बहुत फैशन में, ट्रेंड में है। So even men can make this also as a trend. It depends upon you what you carry in what mentality. वो एक ट्रेंड बन सकता है। हमेशा हम हमेशा कोशिश करते हैं वो जो पहन रहा है उसको फॉलो करके हम अपना ट्रेंड बनाते हैं, पर वी कैन, इफ वी हैव द कॉन्फिडेंस, वी कैन मेक द ट्रेंड्स। So this is the reason, one of the reason कि why we wear such dresses, Indian dress codes. जब वो स्टेज चढ़ते हैं तो मतलब प्रॉब्लम होता है, मतलब धोती पहन के ये it takes some time. It takes some time and experience. कभी आपको लगेगा कि it is too body show also, पर it takes some time. पर आप उसके साथ में सीख सकते हैं कि हाँ कितना फोल्ड होने से it is comfortable, कि आप जितना नहीं नाच पाएंगे उससे ज़्यादा कंफर्टेबली इस ड्रेस के अंदर में नाच रहे होंगे डिवोटीज। यदि आपने देखा हो शाम को भी, so there is a particular section of devotees which are training devotees. तो वो जिस पैटर्न में डांस करते हैं आप उतना नहीं कर सकते ये पहन के, आप शायद बार बार ऊंची कर रहे हैं पर उसको तो कुछ नहीं हो रहा है, और उसने ऐसा चीज पहना हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा। और वैसे आपने पूरी, और एक और चीज है, हम तो यहाँ बॉडी का आपको फिट करवा नहीं रहे हैं, पर जो प्रोसेस में आप घुसे हैं उसी के अंदर में सब कुछ हो गया। आपकी एक्सरसाइज हो गई, आपका माइंड फ्रेश हो गया, आप जाते हैं ड्रिंक करते हैं और उसके बाद में अपने आप को भूल जाते हैं कि हाँ मैं क्या हूँ, बस ये समझते हैं कि हाँ मैं कुत्ता हूँ, और उसके बाद में हम वहाँ डांस करते हैं ताकि आपकी फ्रस्ट्रेशन सारी निकल जाए। यदि आपको पता हो कि नहीं मैं तो ये हूँ, तो मैं डांस करूंगा तो लोगों को लगेगा मेरा स्टेटस मेरे को तो आता नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ये निकालने के लिए लोगों को ड्रिंक करना पड़ता है। यदि नहीं करेंगे तो उससे बाहर नहीं आएंगे, और जब ड्रिंक कर लेते हैं तो भूल जाते हैं, तब हम कर सकते हैं। और जब तक आप डांस करेंगे नहीं झूमेंगे, तो आपके अंदर से वो जो आपने भर रखा है पूरे दिन का नेगेटिविटी, वो निकलेगा नहीं, और उससे आप और फ्रस्ट्रेट होते हैं, और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही सात्विक और बॉडी फ्रेंडली, माइंड फ्रेंडली प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम अपने आप को बहुत ज्यादा फ्रेश कर लेते हैं। तो ये डांसिंग किसी को लग सकता है फैनेटिज्म, ये क्या है, भगवान को आपने बुलाया है, भगवान के पट खुले उसके सामने कूद रहे हैं। कोई बोल सकता है कि आप कूद रहे हैं। मंगलायत में कल आप देखेंगे पूरा ग्रुप आया हुआ है गीता भवन के अंदर, फ्रॉम हल्दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, 500 से ज्यादा मतलब देयर फैमिली मेंबर्स आर आल्सो देयर। तो कूदेंगे वो, ये ट्रेनिंग डिवोटीज हैं हमारे लगभग 30 के आसपास, कूदेंगे, और बहुत सारे आप देखेंगे कूद रहे हैं। ये क्या है, कईयों को लगता है अजीब है, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं असल में आप बहुत कुछ कर रहे हैं सही, और आपका भी बहुत, असल में आपको लग रहा है कि क्या है, लेकिन उस समय आपका बहुत मन कर रहा है, और आप तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक आपको कोई टच ना करे। और जैसे ही आपको किसी ने पकड़ के ऐसे खींचा थोड़ा सा, तुरंत आप भी शुरू हो जाएंगे। ये नॉर्मल होता है ना, शादियों में हम क्या करते हैं कि हम देखते रहते हैं कोई नाच रहा है, जोर से नाच रहा है, हम खड़े रहते हैं अपना डिग्निटी मेंटेन किए, मेरे को भी कोई इनवाइट करे, फिर जब बस हमको भी बुलाए, जैसे ही किसी ने खींचा हम शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे भी सेम है वो। और ये भगवान के सामने नाचने का सिग्निफिकेंस क्या है,
भगवान के सामने भी नाचा जाता था। आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी, उसके सामने अकबर के सामने में बहुत सारे नृत्य कर रहे होते हैं। किस लिए? प्लेजर ऑफ द किंग, प्लेजर ऑफ द किंग। तो भगवान है सुप्रीम किंग, उनके प्लेजर के लिए, उनके सामने, उनकी प्रजा हैं हम भी क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं उनको सुख देने के लिए। ये हायर कॉन्शियसनेस है। पहली तो है कि मेरे को सुख मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, अभी तो यही है कि मेरे को मिल रहा है कि नहीं, ऑफ कोर्स आपको मिल रहा है, लेकिन हायर जब आता है तो एक पैटर्न में ही डांस करते हैं सब। तो वो जब राजा के सामने डांस करते तो कोई अपने मन से ऐसे शादी में डांस नहीं कर रहा होता, एक पैटर्न फॉलो करके करते। किस लिए करते हैं? क्योंकि प्लेजर उसको मिलना चाहिए। इसीलिए भगवान के सामने भी डांस करने का एक पैटर्न है, उस पैटर्न में ही सभी डांस करते हैं ताकि भगवान को प्लेजर मिले, और वो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और क्योंकि वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, वैदिक मतलब वैदिक मेड प्रोसेस है, तो हमें भी उसमें बहुत आनंद मिलता है, प्लस वी आर नॉट फैटिग्ड। उससे स्टेमिना बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इवन कितना भी आप जिम करते हो, आप जाएं और किसी डांस करने वाले के साथ में कंपटीशन रखें, आप फेल कर जाएंगे कि एट द एंड ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे आपके इमोशंस काम करते हैं और वो आपको ऐसी एक्सट्रीम काम करा सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये एक हम कह सकते हैं कि हमारे माइंड, बॉडी, सोल सबके लिए फिट प्रोसेस है। सुबह से लेकर शाम तक जो भी ये क्रियाएं हैं, तो ये आरती केवल मात्र भगवान को ऑफरिंग ही नहीं है। भगवान को ऑफरिंग करते, अब एक और चीज भगवान को ऑफर कर रहा है कौन? ये सारी चीजें पुजारी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम जब देख रहे हैं तो शास्त्रों में लिखा है कि इफ वी सी दैट विद माइंड, व्हेन वी आर सीइंग पुजारी डूइंग दैट, वी आर आल्सो ऑफरिंग, वी गेट द सेम रिजल्ट्स व्हाट पुजारी इज गेटिंग बाय ऑफरिंग देम। तो मतलब हमें भी वही बेनिफिट मिल रहा है जो हम ऑफर कर रहे होते पर्सनली, केवल मात्र उसे देख के, ऑब्जर्व करके, माइंडफुल। और उसके साथ साथ में आप ये सब कूदा-फांद ये सब भी चल रहा है आपका, मतलब आप हर कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर में आप कहीं से भी नहीं कह सकते कि आप क्या बोले, मज़ा नहीं आया आपको। आपको मज़ा भी आया, आपको बहुत कुछ मिला भी इसके अंदर में। ये ऐसा प्रोसेस है। तो अब ये इतना कॉम्पैक्ट प्रोसेस है कि पहले यदि कोई देखे, ऐसा कोई है नहीं और प्रोसेस। तो यदि कोई देखे तो बड़ा अजीब लगता है कि हाँ, ये क्या है? पर when you know कि हाँ क्या है, and then you experience it, then you realize कि हाँ जो एक एक चीज है वो कितनी ज्यादा महीन, बारीक, साइंटिफिक है, कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल है, जो करने से हमें बहुत मजा आता है। हम साधारणतः मंदिरों में क्या देखते हैं? मंदिर में आरती गाता ही है केवल मात्र पुजारी, गा लेता है, हम खाली खड़े थे, घंटा हिलाते चले जाते हैं, हमको कुछ पता भी नहीं। बट हियर दे सिंग, नॉट ओनली दे सिंग, दे डांस ऑल्सो। तो बहुत ज़्यादा हाईली एलिवेटेड प्रोसेस है, जो कि श्रील प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया, सिखाया। पहले किसको? विदेशियों को उन्होंने सिखाया। वो जब भारत में आए तो दे वर नोन एज डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स, क्योंकि सब विदेशी उस समय थे भयानक हाइट वाले। इंडियंस सब मरे हुए लगते हैं, अभी भी आप देखेंगे वो हेडन के सामने में यदि गौतम गंभीर खड़ा होता है तो कैसा लगता है, भयानक है। सो उन वैसे लोग, एकदम गोरे चिट्टे लोग, और वो जब नाच रहे थे ऐसी अटायर्स पहन पहन के, सो दे वर लाइक, न्यूज़पेपर हेडलाइंस वर व्हाइट एलिफेंट्स, सफेद हाथी। और ये बहुत हाई एलिवेटेड चीज है, सफेद हाथी। तो प्रभुपाद ने भी वही नाम फिर यूज कर लिया हर जगह कि दे आर माई डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स। उन्होंने फिर हमको सिखाया। उनको देखते ही इंडियंस ने देखा कि अरे हमारा काम ये कर रहे हैं। पहले उन्होंने देखा था कि वो जीन्स पहन रहे हैं, हम भी जीन्स पहनेंगे। वो पब्स में जा रहे हैं, हम भी पब्स में जाएंगे। वो बर्गर खा रहे हैं, हम भी बर्गर खाएंगे। अब उन्होंने देखा कि वो ये प्रभुपाद, इसीलिए जब इंडिया में ट्राई कर रहे थे प्रचार करना, कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि हमारे माइंड में था उनको फॉलो करना है, ये सब बोरिंग हो गया, सब गुजरे जमाने की। प्रभुपाद ने उनको चेंज कर दिया, वो आकर के हमको चेंज कर दिया। सो नाउ वी ऑल लाइक, बहुत सारे हैं, आप इतने से हैं, आप देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हु आर एक्टिवली एसोसिएटिंग। लाइक जो एक डी एडिक्शन प्रोग्राम किया था पिछले साल दिल्ली दिल्ली में, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। वो इतने लोग कभी एक साथ, यूथ ऐसे प्रोग्राम में नहीं आए थे जो कि उन्होंने। सो दे आर मेनी पीपल। और ये जब हमको पता चले कि हाँ बहुत से लोग कर रहे हैं, तो हमें लगता है हाँ, तब हम भी कर सकते हैं। जैसे हमने इंजीनियरिंग क्यों की, बहुत सारे। एक बार है कि वाई एंड हाउ टू पे ओबेसेंसेस, तो कैसे प्रणाम करना चाहिए, तो मैं बता चुका हूँ कि कैसे प्रणाम करते हैं। हम दंडवत प्रणाम करते हैं और सीधे प्रणाम नहीं करते हैं। ये एक और अजीब सी चीज है।
ये कई बार डिवोटीज को लग सकता है ऐसा कि मान लीजिए ये है भगवान, लेफ्ट साइड में रख के प्रणाम हाँ, तो यहाँ पे वो खड़ा हुआ है कोई बंदा भगवान के सामने, और यहाँ के कोई डिवोटी ऐसे प्रणाम कर रहा है, उसको लगता है मुझे क्यों कर रहा है। ये पहले मुझे हमें भी लगता था, कॉमन है कि क्यों कर रहा है ये, और अभी भी जो गेस्ट है उनके सामने यदि कोई करता है उनको लगता है ये कौन सा तरीका है। बहुत सबसे ज्यादा जो माइंड बॉगलिंग चीज है जो यहाँ पे दिखती है वो ये प्रणाम करने का तरीका, ये ऐसा क्यों है। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक क्या, आपके मेंटल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रीजन, कि जब आप किसी बहुत बड़े आदमी के पास जाते हैं जो आपके स्टेटस से बहुत ज्यादा बड़ा हो, सो देन यू नेवर अप्रोच हिम डायरेक्टली फेस टू फेस। आप उसके ऑफिस में घुसेंगे, सीधे जाकर के उससे सामने में बात करने की हिम्मत सब में नहीं होगी, क्योंकि वो आपके स्टेटस से बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो फिर आप क्या करेंगे, तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं, कोई बंदा अपना काम कराने के लिए किसी के पास, जो कोई यदि कोई बहुत बड़ा है तो उसके पास हमें अपने आप से हमें विनम्रता आ जाती है, हम हम्बल हो जाते हैं कि हाँ रिक्वेस्ट करते हैं सर मेरा ये काम कर दीजिए, ऐसे सर मेरा ये काम। तो ये भी हम सामने से जाके नहीं बोलते हैं, साइड में जाके उसके कान में बोलते हैं। वो सामने में अपने स्टेटस वाले आदमी के साथ मान लो बैठा है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे घूम के आएंगे, मान लीजिए मैं हूं और ये हैं, हम आमने बात कर रहे हैं, तो आप आए साइड में आके यहाँ पे सर मेरा ये काम कर दीजिए, ऐसे साइड से रिक्वेस्ट करते हैं। नॉर्मली वी फॉलो दिस, ये एक नॉर्मल हमारा मेंटल स्टेटस है। यदि हम बहुत ज्यादा बड़े आदमी के पास गए हैं तो हम साइड से जाके अपना काम निकालेंगे, फेस टू फेस हम नहीं जाएंगे। तो ये असल में सही है। फेस टू फेस कौन जा सकता है, इक्वल स्टेटस वाले लोग बात करते हैं फेस टू फेस। तो हम भगवान के साथ इक्वल स्टेटस में नहीं है, इसीलिए हम भगवान को सीधा प्रणाम नहीं करते, सीधा प्रणाम करने की क्षमता नहीं है, इसलिए हम भगवान को क्या करते हैं, बाईं तरफ रखते हैं, नॉर्मली हमारी बाईं तरफ, ठीक है, और हम भगवान को बाईं तरफ रख के प्रणाम करते हैं। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि आप जो सुप्रीम लॉर्ड है, भगवान है, उनको बाईं तरफ रखते हैं, जो डेमी गॉड्स हैं, देवी देवता हैं, यानी बाकी के जिनको हम भगवान कहते हैं, उनको आप दाईं तरफ रख के प्रणाम करें। यानी आप दुर्गा माँ को प्रणाम कर रहे हैं तो आप किस तरफ रख के करेंगे, दाहिनी ओर रख के। ब्रह्मा जी को प्रणाम कर रहे हैं, दाहिनी ओर रख के। फिर आता है तो सीधा किसको प्रणाम करते हैं, सीधा हम प्रणाम करते हैं डिवोटीज, भक्तों को, वैष्णवों को। तो वैष्णव में शिवजी भी वैष्णव भी आते हैं, तो शिवजी को आप दोनों तरीके से प्रणाम कर सकते हैं, डेमीगॉड मानते हुए दाईं तरफ भी, लेकिन वैष्णव नाम यथा शंभु, सब वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान शंभु, तो उनको सीधा भी प्रणाम कर सकते हैं। और गुरुदेव को, जो कि अभी श्रील प्रभुपाद हैं, तो श्रील प्रभुपाद को हम डायरेक्ट प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन यदि श्रील प्रभुपाद अभी यदि मंदिर में देखा आपने, राधा माधव के ठीक सामने बैठे हैं प्रभुपाद, तो यदि आप प्रभुपाद को सीधा प्रणाम करेंगे तो आपके पैर किधर दिखेंगे, राधा माधव को दिखेंगे, वो नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रभुपाद को आप साइड में जाके प्रणाम करते हैं। तो सबको इस वहाँ पे साइड में, मंदिर में सबको ही हम साइड में प्रणाम करते हैं। okay. और एक लास्ट था कि हम सबको ये प्रभु प्रभु क्यों बोलते हैं, Why we call everyone as प्रभु। प्रभु का मतलब होता है मास्टर, प्रभु का मतलब है मास्टर, प्रभु का मतलब भगवान नहीं है, प्रभु का मतलब है मास्टर। कई जगह शास्त्र में हम पाएंगे, भागवत में पाते हैं कि कई दूसरों ने दूसरों को कहा है, प्रभु कह के संबोधित किया या ईश्वर कह के संबोधित भी किया है, मतलब उनकी महत्ता बताने के लिए केवल मात्र एक संबोधन है ये। तो प्रभु हम किस लिए कहते हैं, हम माई मास्टर, प्रभु जी मतलब आप मास्टर हैं। तो असल में यदि आपने देखा यहाँ पे सबके टाइटल होते हैं, यदि कोई दीक्षा लेता है तो सबके टाइटल होते हैं क्या, दास। क्यों दास होते हैं, क्योंकि हमारी फिलॉसफी कहती है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, मतलब जीव की यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो क्या है। आप अभी कुछ भी बन रहे हो, आप आईएएस बने, आपकी पोजीशन आप बताएं मैं आईएएस हूँ, आप आईपीएस बने, आईपीएस बताएं, एमएलए बने और या एमपी बने, पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो ओरिजिनल पोजीशन है आपकी वो क्या है, दास टू सर्व। और प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे से कि कैसे आप सर्वेंट हैं। हर एक व्यक्ति इस ब्रह्मांड के अंदर में क्या कर रहा है, सर्विस। या तो वो अपने पति को, पत्नी को, अपनी माँ को, पिता को, भाई बहनों को, परिवार को, या फिर उससे ऊपर जाए तो समाज को, उससे ऊपर जाए तो देश को, उससे भी ऊपर जाए तो मानवता को, उससे भी ऊपर जाए तो फिर सबको
सारे जीवों को, जैसे पेटा है वो जानवरों के लिए कुछ कर रहा है, तो सब कर क्या रहे हैं असल में? सर्विस। और मान लो सबसे नीचे आए तो किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो एट द एंड अपने इंद्रियों का दास है वो, अपने इंद्रियों को की वो सेवा कर रहा है और किसी की भी नहीं कर रहा। तो है असल में सब क्या? दास, सब सर्विस कर रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो सर्विस एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड तो आपका बाय बर्थ है, अपने यहाँ पे आप जो जीव हैं बाय बर्थ वो सब सर्विस ही करेंगे, पर किसकी करनी चाहिए ये भूल गए हैं, इसलिए यहाँ पे आप तड़प रहे हैं, यहाँ पे आप बिलख रहे हैं, यहाँ पे आप कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप वो गोस्वामी जो हैं, सारी इंद्रियों के जो स्वामी हैं भगवान कृष्ण, उनकी यदि आप करने लग जाएं ये सेवा, तो क्या होगा? आप ब्लिसफुल रह सकते हैं, आनंदमय रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो उनके ही दास थी, जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास। तो हम यही कोशिश करते हैं पहले तो ये एक्सेप्ट करने की दैट आई एम दास, बाय कॉलिंग एवरीवन एल्स एज प्रभु, दैट यू आर मास्टर, यू आर मास्टर, यू मास्टर। अगेन हम कहते हैं प्रभु, और देखेगा कि प्रभु जी से बोल रहे हैं कि आप मास्टर हैं, मास्टर हैं, और फिर झगड़ा कर रहे हैं प्रभु जी आपने ऐसा कैसे कर दिया, प्रभु जी ये, प्रभु जी वो, कोई मार भी रहा है, तो ऐसा कैसे मास्टर है कि मार रहा है? तो ये अगेन है फिर क्या? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजा। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो जो मनोभाव है वो एक बार में कोई साफ नहीं कर सकता है। फोर्सफुली यू कैन नॉट इरेज आउट ऑल योर इमोशंस, ये प्रभुपाद ने कहा भी नहीं है ऐसा करने के लिए। आप सेवा करिए, धीरे धीरे सेवा के अंदर में ही क्या होगा? माध्यम से वो परिष्कृत होते जाएंगे, आप चेतो दर्पण माध्यम धीरे धीरे होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। देन वन डे यू विल रियलाइज, व्हेन यू से प्रभु, देन यू विल रियलाइज कि हाँ प्रभु मतलब ये, वो एक दिन सबका आता है। तो तब हम ये समझाते, इसलिए हम कोशिश करते हैं हर एक को प्रभु बोल के संबोधित करने की। ये एक शिष्टाचार कह सकते हैं, सामाजिक शिष्टाचार, जो कि समाज के अंदर में व्यवस्था बनाए रखता है, और उसके अलावा हमारे मेंटल स्टेटस के लिए भी अच्छा है कि हमें धीरे धीरे सबॉर्डिनेट बनने की प्रेरणा देता है। तो इसी के साथ, अच्छा हाँ ये नहीं बताया बीट बैग, लेकिन सो व्हाई वी यूज अ बीट बैग फॉर चैंटिंग। तो बीट बैग चैंटिंग के लिए इस्तेमाल करने का मुख्य कारण है कि जब हम माला जप करते हैं तो माला हम नीचे इधर उधर टच कराते हैं, करा ही सकते हैं। माला तो हमने ली थी मन के लिए, ज़्यादा धार्मिक तो ली नहीं थी, लेकिन असल में जब आप जप करते हैं, ये मंत्र जो है ये नॉर्मल मंत्र नहीं है, यह महामंत्र। मंत्र की बहुत ज़्यादा पोटेंसी है। वो पोटेंसी आपकी किस में स्टोर हो रही है? आपकी माला में। यदि आप किसी शुद्ध भक्त की माला में जप करें, यू विल फील टोटली डिफरेंट, क्योंकि उसकी पोटेंसी उसके अंदर में है। ऐसा होता है, आप जयपुर के अंदर में दे डिड कि मंत्रों की पोटेंसी से उन्होंने क्या बोलते हैं, बीजों को, जो सीड्स होते हैं उनको उन्होंने सिद्ध किया, हवन किया, और फिर हवन के जल चारों तरफ वो बीज रख के उनको सिद्ध किया। उसके बाद में हवन का जो वहां पे जो जल था, उससे कहीं से जल बनाया पता नहीं, उस जल को भी उन्होंने, जहाँ पे बीजों का रोपण हुआ उस जल का भी छिड़काव किया, और फिर उन्होंने अन्न की उत्पत्ति की। ऐसा पहले होता था। तो वो शुद्ध, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, तो वैसे अन्न उगाते थे तो वैसे हम बहुत अच्छे रहते थे। तो ये मंत्रों का पावर है। ऐसे बहुत सी चीजें में मिलता है हमें कि मंत्राज वाइब्रेशन जो है उसका पावर रहता है। तो ये जो पावर है हमारी माला में आता है, इसलिए वी शुड ट्राई कि कंटिन्यूसली, पहली चीज तो हम एक ही माला पे जप करें और हमारी माला पे जप करें, हर एक की माला पे नहीं जप करें। ये कॉमन चीज नहीं है, ये आप जब लॉन्ग टाइम तक करते रहेंगे तो आपको एहसास होगा। दूसरी बात आती है, अब वो जो माला है वो आप इधर उधर फेंकते रहते हैं तो उससे क्या होगा? When it touches all the surfaces, it loses. But when you have one, then it, to keep that mala, then the potency remains intact over there. And at the same time, as this is an auspicious mantra, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज की, ऑस्पिशियस मंत्र करने की, तो आपको उस माला को भी उतना ही सम्मान देना जरूरी है। वो सम्मान देने के लिए वो फीडबैक हमारे लिए जरूरी है कि हाँ, माला नीचे ना रखें, माला फर्श पे स्पर्श नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी गंदी जगह पे रखनी चाहिए माला। बहुत सारे नियम होते हैं। तो ये नियम शुरू में क्योंकि हम लकड़ी की माला पे करते हैं उतने ज़्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन धीरे धीरे हमको सीख के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाद में एक स्टेज आता है जब आप तुलसी की माला व्यवहार करते हैं। तुलसी की माला इसीलिए पहले नहीं दी जाती, क्योंकि ये नियमों को
जानना जरूरी है, प्रैक्टिस करके आना जरूरी है। तो ये एक बेसिक टिकट है, हम उसको करें। और उसके साथ ही आप ज़्यादा जब करना चाहते हैं, माला आप हर जगह कैसे ले जाएंगे, पहन के जाएंगे या रख के हर जगह नहीं ले जा सकते हैं, खराब लगेगा नहीं दिखेगा, जो भी है, तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बीड बैग के अंदर में, और हर जगह आप कर सकते हैं। और एक रहता है कि आप जब करते टाइम किसी को दिखाएं ना, तो वो उसके अंदर में छुपी रहती है। और बीड बैग भी ऐसा डिजाइन है कि यू कैन कीप दिस फिंगर आउट एंड यू कैन इजीली चैंट, एंड गंदी ना हो माला आपकी, साफ सुथरी रहे, बहुत से चीजें हैं उसके अंदर। और उसके साथ में वहाँ पे एक साक्षी माला रहती है। साक्षी माला का मतलब है एक काउंटर है कि हाउ मेनी राउंड्स यू हैव चैंटेड, समटाइम्स यू कैन फॉरगेट, लाइक नाउ हाउ मेनी राउंड्स डू यू चैंट, 14, 10, और मिनिमम वाला कोई है 7, उससे नीचे 1 माला 2 माला 7 माला 6 माला 4। तो ये 7 माला 6 माला जब आप करते हैं, कई बार आप काउंट भूल जाते हैं कितनी माला हुई, तब आप काउंट के ऊपर कॉन्शियस हो जाते हैं कितनी माला हुई, माला के ऊपर नहीं। तो उसमें एक काउंटर लटकता रहता है, जस्ट उस पर पुल करते जाइए, 1 माला हो गई 1, 2 माला हो गई 2, 3 माला हो गई 3, इसमें भी हेल्प करता है। दैट्स व्हाई वी शुड यूज फीडबैक्स। और कोई किसी के मन में प्रश्न हो? तिलक तो हो गया। तिलक है भगवान के चरण, भगवान के 2 चरण हैं, वो ऐसे हमने छाप लिए एजेस, और उसके नीचे में हमने क्या लगा लिया है, तुलसी, मतलब भगवान के चरणों पे तुलसी चढ़ा दी है, और भगवान के चरणों को हमने अपने माथे पे धारण किया। फुल बॉडी इज अ टेम्पल, ठीक है। शरीर के 2 भाग हैं, अपर लोअर। लोअर पार्ट को हम खराब मानते हैं, ठीक है, इम्प्योर मानते हैं, अपर पार्ट को हम प्योर मानते हैं। तो पूरी अपर पार्ट को नहाने के बाद में शुद्ध करके उस आचमन से, उसके बाद में उसको तिलक से सजाते हैं। मतलब पूरे शरीर के अंदर में हमारे कौन निवास कर रहे हैं, भगवान निवास कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो पूरी शुद्ध हो जाती है कि नहीं, अब और कोई नहीं आ सकता, ना हम कोई गलत काम कर सकते हैं, ना हमें कोई गलत चीजें प्रभावित कर सकती हैं, ना कोई गलत शक्तियां हम पे अपना प्रभाव डाल सकते हैं, ऐसे बहुत कुछ है। तो इसीलिए एक एक मंत्र भी बोल के हम तिलक करते हैं। आप सब करते हैं कि फुल बॉडी तिलक बता दिया गया है, बताया नहीं गया, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा था कि एक एक मंत्र होता है, एक एक दिशा के लिए या एक एक शरीर के अंग के लिए एक एक मंत्र है, और ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, समझना मुश्किल है। इसलिए चंदन है वो हम माथे पे लेते हैं, अगेन प्रभुपाद चंदन लगाते थे। चंदन असल में अगेन पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, उसके बाद में माथे को ठंडा रखते हैं। प्रभुपाद जी ने एक चीज कही है, कीप योर हेड कूल एंड योर लेग्स वार्म, बट व्हाट पीपल डू, हेड तो बहुत गर्म होता है सबका ही, ठीक है। एंड इन फॉरेन जब प्रभुपाद ये चीज बोल रहे थे, असल में वो किसको बोले थे, एक रिपोर्टर थी जिसने ऐसे कपड़े पहने थे, मतलब यहाँ मिनी या माइक्रो स्कर्ट पहना होता। तो प्रभुपाद जी ये चीज बोल रहे थे कि आवर फिलोसफी इज टू कीप लेग्स वार्म बट हेड शुड बी, लेकिन हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो उल्टा है। अब ज्यादा बालों को उगाएंगे, दाढ़ी उगाएंगे, वो गर्म हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे आप धीरे धीरे इनको चढ़ाते हुए कम करते हैं। तो वो एक तरीका है। इसीलिए चंदन जो है वो असल में माथे को ठंडा रखता है। ऑफ कोर्स ठंड में ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, वरना ठंड भी लग सकती है आपको, पर ये ठंडा रखता है, इट गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट। इसलिए हम Demigods, with the help of the mantras, they used to run the vehicles, fly the vehicles. What is the science between that? तो With the not through only mantras, they demigods fly the used to vehicles. fly their vehicles. Through mantras only. हाँ, How it is, हाँ, हाँ. what is the science? Science, you can say, earlier the process was one who deserves, he used to get. Today the process is even if you don't deserve, you should get. So earlier, today no mantra power, today there is no mantra power. So earlier one who has credited that ability, वो एबिलिटी पाने के लिए उसने बहुत तप किया है, तब उसके पास ये शक्ति आई है कि वो इसको उड़ा सकता है, या वो इसको तहस नहस कर सकता है, या वो इसको कुछ भी कर सकता है। उसी बंदे के पास ये शक्ति दी जाती है जो उस प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन से गुजर चुका है, यानी उसका माइंड पहली चीज कंट्रोल में है। तब वो क्या नहीं करेगा, विध्वंस नहीं करेगा, ठीक है।
विनाश नहीं करेगा, लेकिन आज के युग में इवन इफ यू डोंट डिजर्व यू विल हैव इट। तो आपका तो माइंड कंट्रोल में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? विनाश करेंगे। एग्जाम्पल बेस्ट है प्लेन की बजाय यदि हम ले तो उन अस्त्रों शस्त्रों का, न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स व्हेन अर्जुन हैज थ्रोन, आफ्टर दैट ही हैज द पावर, ही नोज हाउ टू टेक इट बैक, एंड ही हैज नॉट थ्रोन अंटिल इट इज द लास्ट ऑप्शन। और आज तो मिनट में AK-47 निकाल के बच्चा भी मार देता है। विदेशों के अंदर स्कूल किड्स दे गो एंड शूट, व्हाई? बहुत कौन, इंडिया में भी हो गया। रिसेंट न्यूज है ये कि एक पुलिस ऑफिसर के इन यूपी, पुलिस ऑफिसर के बेटी ने अपने भाई को मार दिया था। बेटी की उम्र है शायद 14-15 साल, और लड़का था कॉलेज में, बड़ा भाई है वो, कॉलेज में झगड़ा हुआ था, उसने अपनी पिस्टल से मार दिया था। उस समय पिताजी घर पे नहीं थे और वो पिस्टल घर पे थी, और बाद में वो पिताजी ने ही वो बात छुपा दी। बेटी ने उल्टा पुल्टा कहानी बना दी कि वो लड़ाई हुई या कोई आया, नहीं, उसने कहा कोई आया बाहर से लूटने के लिए और गोली मार गया, और पुलिस को ऐसे बेवकूफ बना दिया। और बाद में 2-3 दिन के अंदर में उन्होंने खोज के निकाले कि इसी ने मारी थी। तो एक बहन अपने भाई को मार दे रही है गोली, यहाँ पे कोई डिजर्व कर रहा है क्या? ये कोई डिजर्व नहीं कर रहा है, लेकिन इवन इफ यू डोंट डिजर्व यू आर हैविंग इट। तो अर्लियर द प्रोसेस वाज, आप खुद से आप वो एबिलिटी पाइए। तो बहुत सही, ये साइंटिफिकली बहुत सही प्रोसेस है। उसी के पास पावर होना चाहिए जो इसको कंट्रोल कर सकता है। जो कंट्रोल नहीं कर सकता वो नहीं होना चाहिए। ऐसा एक कहानी है कि किसी ने मांग लिया कि मेरे पास ब्रह्मा जी के दिमाग में जो चल रहा है, ब्रह्मा जी तो बहुत कुछ सोचते हैं ना, पूरी सृष्टि के बारे में जानते हैं, वो सारा ज्ञान मेरे को चाहिए। उनके पास तो सारे वेदों का ज्ञान है और वो तो पूरी सृष्टि को बनाया उन्हें नहीं है, तो वो सारा ज्ञान उनके पास है। आई वॉन्ट दैट नॉलेज, एंड ही गॉट दैट नॉलेज, बट एज सुन एज ही गॉट, उसका माथा फट गया, क्योंकि उस ज्ञान को होल्ड करने के लिए ब्रह्मा जी ने भी कितने सिर रखे हुए हैं। तो आपके एक सिर में कैसे आ सकता है वो? So until unless you deserve that, you credit that ability, you cannot afford that. You should not actually. But this is modern philosophy कि हाँ सबको समान होना चाहिए, सबको समान मिलना चाहिए। ये एक तरह से गलत है। प्रभुपाद इसलिए कहते हैं वर्ग होता है। We have divisions as per your ability. We have divisions. You cannot make it same. If everyone becomes Ambani, everyone cannot afford. Ambani इतना पैसे वाला होकर के भी सिंपल रहता है। यही विजय माल्या वो बन गया अमीर, उसने क्या किया? उसने दारू पी और अय्याशी की और लूट लाट के चोर बन के चला गया। तो जब नहीं जिसके पास होना चाहिए उसके पास नहीं होना चाहिए, जिसके पास होना चाहिए उसके पास होना चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, आपने सही बताया, गले का माला और शिखा। शिखा, ओके, शिखा जो है वो थोड़ा साइंटिफिक रीजन है, वो आपको चाणक्य से भी याद आ सकता है, ठीक है, ये बहुत साइंटिफिक है कि इफ यू कीप शिखा इट हेल्प्स यू इन योर ब्रेन पावर, ठीक है। और भक्ति का जो रीजन है वो कहते हैं कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु हु इज गोइंग टू डिलीवर यू फ्रॉम दिस फॉलन कंडीशन, सो वो असल में आपको कहते हैं कि आपकी चोटी से पकड़ के आपको उठाएंगे, ठीक है। तो ये एक भक्ति का रीजन है। और ये जो है कंठी माला, ये क्यों हम पहनते हैं, तो ये शास्त्रों में पुराणों में है वर्णित कि यदि तुलसी से आपका गला सुसज्जित रहे, ठीक है, तिलक से, और तुलसी पत्र आपके मुख में रहे और तुलसी की माला आपके कंठ में रहे, तो आप मरते समय में आपको कोई यमदूत हाथ नहीं लगा सकता। दूसरा है कि भक्त लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि हम कुछ भी खराब चीज नहीं खाते हैं, कुछ भी जो प्रसाद नहीं हो सकता वो नहीं खाते हैं। मांस मच्छी या चाय कॉफी छोड़ दीजिए, कुछ भी खराब चीज हम नहीं खाते जो प्रसाद नहीं हो सकता है, ऐसी चीज हम नहीं सेवन करते। यदि गलती से सेवन करना पड़े तो ये जो है ये यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे है। यदि गलती से हमें सेवन करना पड़ा, ये उसे क्या कर देगी? शुद्ध कर देगी। यदि आपको प्राण जीवन मरण का सवाल होता है या मेडिसिन लेते हैं हम कई बार ऐसी जिसके अंदर में होता है नॉनवेज, तो दिस एक्चुअली प्यूरिफाइज वॉट एवर यू आर इनटेकिंग। और तीसरी है कि इट इज अ सिंबल ऑफ वैष्णविज्म। जो तिलक है और कंठी माला है, ये देख के किसी को भी भगवान का स्मरण होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीवन शुड वियर तिलक, एवरीवन शुड वियर कंठी माला, एंड देन दे शुड गो एंड गिव दर्शन टू पीपल। तो जब ऐसे दर्शन देंगे तो उन्हें किसका स्मरण दिलाएंगे आप? भगवान का। तो आप प्रचार आपने चाहे बोला कुछ भी नहीं हो,
लेकिन आपने सबको क्या याद दिला दिया? भगवान याद दिला दिया, तो ये एक प्रचार कर दिया। दैट्स व्हाई ही आस्क्ड हिम। হোয়াইট আর গেরুয়াতে পার্থক্য হচ্ছে, হোয়াইট হচ্ছে প্রাইমারি লেভেলে, ঠিক আছে। তারপরে প্রত্যেকটি মন্দিরের যেখানে যেখানে আছে সেখানে আশ্রমের কিছু নিয়ম থাকে যে অত বছর পর গেরুয়া দেওয়া হবে মিনিমাম, ঠিক আছে। তো যেরকম আমি 2017-তে জয়েন করেছি, তো এই এখন এই 2021-এ আমার হতে পারে গেরুয়া, মানে I become eligible to become, means 3 years while you are in the temple, then you get saffron. But all whites are not brahmacharis. Even if you stay at home, you are a grihastha, you can wear white. But normally who are just the joinee in the temple ashram, they are also considered to be white, because they immediately আসো তুমি হয়েছে ঠিক আছে নিয়ে নাও গেরুয়া, এরকম এটা সবাই নিতে হবে। এদের দেবতারা হচ্ছে যে মানে মনে মনে কথা বলতে হবে, ওটা কি করে সম্ভব হতো? কি কি মানে যে দেবতারা জানে এটা তো দেবতা না, এটা আমাদের অষ্ট সিদ্ধি রয়েছে। দিস ইজ মানে 8 মনে টাইপস মনে অফ, মানে হ্যাঁ আমরা 8 টাইপস sound অফ না করে আর সিদ্ধি, কি এটা কি করে? 8 টাইপস অফ, এটা মনে মনে কথা। যদি আপনি কাউকে খুব মন দিয়ে প্রেমও করেন, ঠিক আছে, ইফ ইউ হ্যাভ আ স্ট্রং কানেকশন উইথ সামওয়ান বাই হার্ট, ও বুঝে যায় যে আপনি কি বলতে চান। একটা মা নিজের বাচ্চা কি চায় খুব ভালো করে বুঝতে পারে। কিভাবে বুঝতে পারে? ভেরি ভেরি স্ট্রং। তো দিস ইজ ভেরি কমন। সো একটা স্টেজের পর যদি সাধনা করে মানে এরকম সিদ্ধি লাভ করে কেউ, he will come to know, হ্যাঁ কিভাবে আমার কানেকশনটা আছে। মানে কি বলতে চাইছে কি? কি বলতে চাইছে, কি এটা মানে বুঝতে না চাইছে। শুনলেও বুঝতে আর পারবে। আরেকটা আছে যে প্রত্যেকের হৃদয়ের মধ্যে, in our heart we stay, we don't stay in the body, we means সোল, আত্মা। তো আমরা কোথায় থাকি? আমরা আসলে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করছি। हम लोग हमारे हृदय में रह रहे हैं, और हमारे पास में ही और कौन रह रहा है? परमात्मा। तो वो परमात्मा जो है दैट इज एक्चुअली टेलीफोन। वो परमात्मा आपके पास भी है, मेरे पास भी है, उसके पास भी है, उसके पास भी है, सबके पास है वो परमात्मा। तो जो यदि ये जो बोला ना ऐसे कनेक्शन, ये कहाँ से हो सकता है? आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, हमारा कनेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा यहाँ पे भी है, परमात्मा वहां पे भी है। परमात्मा परमात्मा सब में सेम है। तो यदि आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, कौन से लेवल तक? परमात्मा रियलाइजेशन, तब आप जान सकते हैं सबके मन की बात भी, कि हाँ कौन क्या चाहता है। एक स्टेज। तो ये आपने जैसे बताया कि जो क्रेडिबल होता है तो उसको मतलब मिल जाता है, डिजर्विंग को मिल जाता हाँ है। डिजर्विंग को, फिर रावण हो गया, हिरण्यकशिपु हो गया। डिजर्विंग को मिलता है, इसका मतलब उसके लिए आपको करना पड़ता है। तो असुर जो थे, दे यूज्ड टू डू दैट मच लेवल ऑफ पेनेंस, although with the wrong mood, but they used to do, and Lord was forced to give। मतलब ब्रह्मा जी कभी भी हिरण्यकशिपु को वरदान नहीं देना चाहते थे, लेकिन हिरण्यकशिपु सिर्फ एक कंकाल बन चुका था और पूरा शरीर जो है वो चींटियों का घर था। ऐसी तपस्या उसने की थी, उससे कठोर तपस्या ब्रह्मा जी ने कहा है कि ना आज तक किसी ने की और ना कोई करेगा। ऐसी तपस्या उसने की थी। तो लास्ट में भगवान ने दर्शन क्यों दिए, ब्रह्मा जी ने उसको क्यों वरदान दिया? क्योंकि उसकी तपस्या का तपोबल इतना ज्यादा था कि पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया था। एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी पढ़ा होगा ना आपने, हाँ, वो उसका उसने डिस्टरबेंस बिगाड़ दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया उसने। तो जब उसका बैलेंस बिगाड़ दिया तो देन इवन द डेमीगॉड्स, उनके भी सब हम देखते हैं ना हिलने लगते हैं, दे आल्सो फील दैट डिस्टरबेंस। वो जो ताप है वो ताप ऊपर तक आने लगता है। सो देन एक्चुअली वन हैज टू गो एंड स्टॉप, अदरवाइज पूरी सृष्टि का वो बिगाड़ सकता है संतुलन। तो तब जाके देते हैं। तो यानी कि इतनी तपस्या उसने की, बट द थिंग इज मोटिव। तो यहाँ पे एक और चीज सीखने को मिलती है कि अभ्यास करना चाहिए, पर किस चीज का? आतंकवादी बनने का नहीं, भक्त बनने का करना चाहिए। बन सकते हैं, बहुत एक्सपर्ट है आतंकवादी भी, तो क्या बनना चाहिए हमें उस पर भी डिपेंड करता है। तो विद रॉन्ग मूड, इवन इफ यू डू करेक्ट थिंग, इट बिकम्स रॉन्ग। यही हमें वो सारे दानव जो हैं वो हमें यही सिखाते हैं। रावण, जैसे मैंने कहा ना अभी कि जो जिसके पास एबिलिटी वो डिजर्व करता है। रावण का जो मूड था, मकसद था, वो क्या था? स्वर्ग में सिर्फ चुनिंदा लोग ही क्यों जाएंगे, सब कोई जाएगा। इसलिए उसका प्लान था कि मैं एक सीढ़ियां बनाऊंगा
जो सीधी स्वर्ग तक जाएंगे और सब जाएंगे वहां पे। उस प्लान से उसने सब कुछ किया हुआ था, इसलिए द मोटिव वाज टोटली रॉन्ग, बेसिक्स ही उसके पूरे गलत थे। ऑल्दो ही वाज डूइंग, पर वो सोच रहा था मैं कर रहा हूँ, मैं सबको सामान दूंगा, वहां पे वो गलत था। आज के युग में भी जो ऐसा कर रहे हैं सब गलत ही कर रहे हैं। सही तो है ही, शास्त्रों में है वो, सही तो है ही, काला जादू है, सही है, ये सब बहुत मतलब ये है आपकी बाह्यिक शक्तियों के साथ खिलवाड़। जैसे आप रोक टोक इसके अंदर में यही है कि आप कितने सतोगुण में हैं, आप कितने हायर प्लेन पे हैं। जो इफेक्ट कर रहा है वो कौन है, दैट इज ऑल्सो वन सोल। यदि आपने ये शरीर छोड़ा, भूत कैसे बनता है, भूत होता है, अगेन साइंटिफिकली भूत होता है, सटल बॉडी, ठीक है। यदि आपने ये शरीर छोड़ दिया अपनी मर्जी से, भगवान की मर्जी से नहीं, यानी आपने सुसाइड किया, यदि आपने सुसाइड किया यानी आपको शरीर की जरूरत नहीं है, जोर करके आप नहीं चाहिए मेरे को ये शरीर, भगवान ने आपको कृपा पूर्वक दिया, आपने कहा नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है मत लो, तो फिर क्या करोगे, फिर ऐसे बिना शरीर के घूमो। अब बिना शरीर के जब आप घूमोगे सटल बॉडी में, आपके अंदर तो माइंड है, इंटेलिजेंस है, ईगो है, वो माइंड के अंदर में सारी इच्छाएं हैं, उसको पूरी करने के लिए आपको एक शरीर चाहिए, वो शरीर आपको अब मिल नहीं रहा है तो आप तड़प रहे हैं। जब ज्यादा आपके अंदर गंदी वासनाएं हैं और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, भूत कोई 1-2 साल के नहीं होते, बहुत ज्यादा है और फिर उनको बहुत गुस्सा आता है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोग फिर जो कमजोर व्यक्ति है उसके शरीर के अंदर में घुस करके उसके शरीर का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकते हैं, ताकि वो अपनी इच्छाएं जो हैं वो पूरी कर सके। ये बहुत कॉमन सिंपल चीज है, प्रैक्टिकल सी चीज है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है। लेकिन आप कितने स्ट्रांग, माइंड कितना स्ट्रांग है, आपने कितना अपने शरीर के ऊपर में नियंत्रण कर रखा है, उस पर निर्भर करता है कि आप किसी और के द्वारा नियंत्रित होंगे या नहीं। কোনোবার বলতে সে পানিশমেন্টটা অনেক লম্বা থাকে, যখন অবধি সে রিয়েলাইজেশন না পায় অথবা আর কেউ ব্যক্তি ওর উদ্ধার না করে।